Hello students, welcome to all of you in Sam Alchemy classes again. As you know, our discussion in class 11th, chapter 12, class 11th and chapter 12, unit 12 is continued in basic concepts in organics. बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहे हैं और उसमें हम टाइप्स ऑफ रिएक्शंस को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें एडिशन रिएक्शंस को डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट कैटेगरी हम रिएक्शंस की डिस्कस करेंगे एंड दैट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। Substitution reaction. What are substitution reaction? When in a substrate an atom or atomic group attacks and displaces another atom or atomic group and makes a product. Like here, hypothetically question, A B एक substrate है, इस पर X ने अटैक किया, B को डिस्प्लेस किया और A के साथ बॉन्डिंग कर ली और B बाहर हो गया। तो यहाँ पर X ने B को डिस्प्लेस किया, सब्स्टिट्यूट किया, दैट्स वाई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। रियल एग्जांपल्स में अगर हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को देखें तो एग्जांपल्स देखिए, एल्किल हैलाइड्स का एग्जांपल लेते हैं, like CH3Cl react with KOH condition aqueous. Now here OH replaces Cl and formation of CH3OH takes place and KCl eliminated. So alkyl halide, this methyl chloride converts into methyl alcohol, displacement reaction. When an atom, what is displacement or substitution reaction? When an atom or atomic group displaces, substituted another atom or atomic group from reactant, then it's called substitution reactions. It's called substitution. Addition में क्या था कि atom और atomic group get add and forms adduct. Substitution में क्या है? Displaces, substituted another atom or atomic group. एक एग्जाम्पल हमने यहाँ एल्किल हैलाइड्स के डिस्प्लेसमेंट का लिया है, सब्स्टिट्यूशन का। अब देखते हैं जैसे एडिशन रिएक्शंस में कई सारे फ्री रेडिकल्स या इलेक्ट्रोफाइल्स या न्यूक्लियोफाइल्स मींस अटैकिंग रिएजेंट्स के नेचर के बेस पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी 3 टाइप्स की होती हैं। इफ अटैकिंग रिएजेंट इज अ न्यूक्लियोफाइल देन दीज आर कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। The substitution reaction depends on the nature of attacking reagent. If the attacking reagent is nucleophile, then nucleophilic substitution reaction. What it means? When attacking reagent is a nucleophile like AB, attack is by X minus negative charge. This is A plus, this is B minus. This negative charge nucleophile displaces B and formation of AX with elimination of B negative. So, since attacking reagent is a nucleophile, that's why these reactions are nucleophilic substitution reaction. Characteristic features किस कंपाउंड की होती हैं? एल्किल हैलाइड, याद रखिएगा। Alkyl halides have characteristic nucleophilic substitution reactions को ये शो करते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस एल्किल हैलाइड शो करते हैं। न्यूक्लियोफाइल्स को आप जानते हैं रिप्रेजेंट करते हैं न्यूक्लियोफाइल और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं SN से। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एल्किल हैलाइड्स। अब देखते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का रियल एग्जांपल।
like this CH3OH. Polarity in the bond because shifting of this partial shifting of the sigma electron toward this more electronegative oxygen minus and here partial positive charge. Since attack of KOH aqua OH CH3Cl partial negative partial positive attack of OH minus that is obtained from KOH aqua. ये रिएक्शंस हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स में डिस्कस होंगी चैप्टर्स क्लास 12th में डिटेल में। यहाँ पर हम इसका थोड़ा सा ब्रीफ कर रहे हैं कि एल्किल हैलाइड से कैसे अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे है। सिंस यहाँ पर नेगेटिव चार्ज OH माइनस अटैच टू दिस हैलाइड रिप्लेसेस formation of CH3OH with elimination of halide. So this is nucleophilic substitution because attacking reagent is a nucleophile. न्यूक्लियोफाइल प्राइमरी पर, सेकेंडरी पर, टर्शरी पर किस तरह से रिएक्ट करेगा, कैसे प्रोडक्ट्स बनेंगे, इन सब का डिटेल डिस्कशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की क्लास 12 के यूनिट्स में होगा। और वहां पर यह भी डिस्कस होगा कि अगर इससे जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो SN1 एंड SN2 में वाल्डेन इन्वर्जन एंड इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन इज आल्सो कॉल्ड इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, इन सबको डिटेल में वहां पर उनकी आइसोमेरिज्म को भी डिस्कस करेंगे, स्पेशली ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को। बट यहाँ पर हमको सिर्फ सब्स्टिट्यूशन की एक सब कैटेगरी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, तो उसका ये एग्जाम्पल है एल्किल हैलाइड्स reacts with KOH aqua, formation of alcohol takes place. So it is a type of nucleophilic substitution reaction. Next is electrophilic. Electrophilic substitution reaction. इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के नेम से क्लियर है, when in substitution reaction attacking reagent is an electrophile then these are called electrophilic substitution reaction. When displacement of atom of atomic group is takes place by or carried out by an electrophile, these are called electrophilic substitution reaction. एरोमेटिक कंपाउंड्स की जो रिएक्शंस हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं, लाइक बेंजीन रिएक्ट्स विद मेथिल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ anhydrous AlCl3, formation of toluene CH3CC5CH3 toluene with elimination of HCl. toluene nomenclature में पढ़ चुके, कॉमन नेम मेथिल बेंजीन is a type of category of electrophilic substitution reaction. देखते हैं ये इलेक्ट्रोफिलिक का कैसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की कैटेगरी है। Here in this reaction CH3Cl methyl chloride in presence of AlCl3 anhydrous, यहाँ पर AlCl3 एक कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है, सिंस ये स्लाइटली पोलर है, देयरफॉर ये क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से ब्रेक करके AlCl3 इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग है, सो इस नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ऐड बनाएगा AlCl4 माइनस और यहाँ पर बन जाएगा CH3 पॉजिटिव। यहाँ पर कार्बोनियम आयन का फॉर्मेशन होता है एंड दिस कार्बोनियम आयन इज मेथिल कार्बोनियम आयन। रिपीट कर दूं, in electrophilic substitution in aromatic compounds methyl chloride polar bond होता है CX का नेचर, anhydrous AlCl3 जो कि एक ये इलेक्ट्रोफाइल ही है जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो ये पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव बॉन्ड ब्रेक होगा और ये नेगेटिव यूनिट जाएगी इलेक्ट्रॉन
अट्रैक्टिंग यूनिट्स के पास, तो AlCl3 कन्वर्ट हो जाएगा AlCl4 माइनस एंड दिस CH3 विल कन्वर्ट इनटू मेथिल कार्बोनियम आयन. Now methyl carbonium ion in step second attacks on benzene ring. Since we know in benzene ring in alternate order double bond and CH at all the points. Now attack of CH3 positive methyl carbonium ion is carried out. It takes electron from here and get attached. Here हाइड्रोजन इज दिस, मेथिल इज दिस. सिंस ये इलेक्ट्रॉन मेथिल ने अट्रैक्ट कर लिया और यहाँ पर बॉन्ड बना लिया है, तो इस पॉइंट पर ऑर्थो पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा. रेस्ट विल बी एज सच डबल बॉन्ड. इन नेक्स्ट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर रिजोनेंस पढ़ चुके हैं. डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस हियर. सो अब ये पॉजिटिव यहाँ पर आ जाएगा. नेक्स्ट इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा दिस इज मेथिल, दिस इज हाइड्रोजन अटैच्ड. नाउ हियर डबल बॉन्ड, हियर पॉजिटिव चार्ज appears and this will be as such. Next resonating structure where this pi comes to here and positive charge appears at this position. Now CH3H and here double bond and here positive charge appears. So overall we can say these are resonating structures. The resonance hybrid of this will be, we can say this. In overall ring of benzene there will be positive charge and here methyl is attached, methyl and with hydrogen at this apex. Now in attack of AlCl4 minus, this hydrogen gives its electron here, positive charge get disappear. Now this H plus mix with AlCl4, elimination of HCl with AlCl3 takes place and formation of toluene is carried out. This toluene CH3 is formed. Here AlCl3 comes as such in reaction, so it is a catalyst जो यूटिलाइज नहीं होता है और HCl एज ए बाई प्रोडक्ट एलिमिनेट हो गया. ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की एक कैटेगरी है और कई सारे कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है. ये सारे स्ट्रक्चर्स रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, यहाँ से रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और ये स्ट्रक्चर रिजोनेंस हाइब्रिड है. इसको हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं रिजोनेंस के टॉपिक में. और ये मेथिल बेंजीन का फॉर्मेशन दैट इज टोलुइन का फॉर्मेशन हुआ है. अटैकिंग रिएजेंट इज कार्बोनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल, दैट्स व्हाई इट्स अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. यहाँ से हाइड्रोजन डिस्प्लेस हुआ, उसके प्लेस पर कंप्लीट बॉन्ड मेथिल लग गया. सो इट्स अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. नेक्स्ट इज next category is C, free radical. Free radical substitution reaction. Free radical substitution के नेम से क्लियर है कि when the attacking reagent is a free radical displaces an atom or atomic group from substrate. So it will be a category of free radical substitution. Alkanes, saturated hydrocarbons. Saturated hydrocarbons, alkanes. Hydrocarbons, that is alkanes, paraffins. ये सब्स्टिट्यूशन शो करती हैं फ्री रेडिकल से और इस रिएक्शन को डिस्कस कर चुके हैं. इन प्रेजेंस ऑफ sunlight, chlorination of methane is carried out. So it's a free radical mechanism. Chlorine, one accept this electron, one accept one electron. So odd electron containing units are formed. This free radical attacks here.
hydrogen free radical is released and formation of CH3Cl with elimination of HCl. So ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होती है, इसमें अटैकिंग रिएजेंट एक फ्री रेडिकल होता है, दैट्स वाई यहाँ पर ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल है। इस रिएक्शन को डिस्कस कर चुके हैं फ्री रेडिकल की प्रोडक्शन में, और ये सब्स्टिट्यूशन में फिर से आ गया है। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मींस व्हेन अटैकिंग रिएजेंट विल बी अ फ्री रेडिकल एंड वन एटम और एटॉमिक स्पीशीज विल बी रिप्लेस्ड और will be substituted from substrate that is reactant, so it will be called as free radical substitution reaction. Alkanes show characteristic free radical substitution reaction like chlorination of alkanes, also called as halogenation of alkanes. Halogenation of alkane, in which chlorination of alkane is a subcategory. Next is addition reaction and substitution reactions completed. Next is rearrangement reaction. रीअरेंजमेंट रिएक्शंस ये क्या होती हैं? थर्ड, रीअरेंजमेंट रिएक्शंस क्या है? जब किसी सबस्ट्रेट से कुछ ना तो एलिमिनेट हो ना उसमें कुछ ऐड हो, उसका इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन, उसका स्ट्रक्चर चेंज हो और कोई एटम और एटॉमिक ग्रुप अपनी पोजीशन को चेंज करके दूसरे कार्बन से अटैच होकर के नेक्स्ट कंपाउंड बना दे, ड्यू टू इंटरनल शिफ्टिंग ऑफ रेडिकल्स न्यू स्ट्रक्चर इज फॉर्म, इट्स कॉल्ड रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। ऐसी रिएक्शंस जिनमें की ड्यू टू इंटरनल चेंज इन द पोजीशन ऑफ द एटम और एटॉमिक ग्रुप्स और रेडिकल्स अटैच्ड, a new compound is formed, these are called rearrangement reactions like CH3, CH2, CH2, CH3. This is normal butane. This is normal butane. Now, in presence of AlCl3, heating it, it gets rearranged and forms CH3, CH3, CH3. Rearrangement. This is normal butane. This is 2-methyl propane. So what clear from here कि रीअरेंजमेंट में अलग से ना तो कुछ ऐड हो ना ही कुछ एलिमिनेट हो, बट एटम्स और रेडिकल्स और ग्रुप्स अपनी पोजीशन को चेंज करें और एक नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर दें, तो इसे बोलते हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। तो रीअरेंजमेंट रिएक्शंस क्या हो गई? रिपीट कर दूं, those reactions in which a substrate due to internal change in the position of radicals or atomic group attached changes into another compound, so these reactions are called rearrangement reactions like normal butane. This straight chain converts into 2-methyl propane, gets changed position of methyl and forms here general formula C4H10, but structure is different. आइसोमराइजेशन का भी ये केस है, जो स्ट्रक्चरल आइसोमराइजेशन का केस है, स्ट्रक्चरल में स्ट्रक्चरल में चेन आइसोमराइजेशन का है। यहाँ पर 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है, तो यहाँ पर 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है, तो ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में चेन आइसोमेरिज्म का भी एग्जांपल हुआ रीअरेंजमेंट, वेयर देयर इज द चेंज इन द कार्बन चेन कॉल्ड चेन आइसोमेरिज्म। तो चेन आइसोमेरिज्म का भी एग्जांपल है, रीअरेंजमेंट रिएक्शन का भी एग्जांपल है।
नेक्स्ट इज कंडेंसेशन रिएक्शन। कंडेंसेशन रिएक्शंस, कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होती हैं? कंडेंसेशन रिएक्शंस होती हैं पॉलीमराइजेशन से मिलती हुई बट थोड़ा सा डिफरेंस। इन कंडेंसेशन रिएक्शंस टू और मोर देन टू सेम or different molecules unite to give a big product with or without elimination of a byproduct। मतलब जब टू आइडेंटिकल या टू अनआइडेंटिकल, टू आर मोर देन टू अनआइडेंटिकल reacting species unite to give a big product with or without elimination, with or without elimination of बाई प्रोडक्ट। यहाँ पर कोई बाई प्रोडक्ट निकल भी सकता है या कोई बाई प्रोडक्ट नहीं भी निकल सकता है, बट एक बल्क, एक बिग बल्की मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा तो उसे कंडेंसेशन कहेंगे। व्हाट इज कंडेंसेशन? When two or more than two reacting species unite to give a big molecule, big product with or without elimination of byproduct। बाई प्रोडक्ट, जिनमें बाई प्रोडक्ट निकल भी सकता है या बाई प्रोडक्ट नहीं निकल सकता है, वो होंगी कंडेंसेशन। लाइक एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन की रिएक्शन ये क्लास 12th में स्टडी होगी। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में एल्डोल कंडेंसेशन लाइक दिस CH3 CHO ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज CH3, इसको ऐसे लिख सकते हैं CHO। कंडेंसेशन इनका होगा कंडेंसेशन। नाउ यहाँ पर ये हाइड्रोजन यहाँ पर शिफ्ट करेगा और ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को शिफ्ट करेगा तो बीच में बॉन्डिंग हो जाएगी। सो प्रोडक्ट फॉर्म CH3 CHOH CH2 CHO। ये फॉर्मेशन हो गया एल्डोल। दिस इज कॉल्ड एल्डोल, जिसमें एल्डिहाइड और अल्कोहल दोनों हैं, ऑल भी है एल्डिहाइड भी है, तो एल्डोल का फॉर्मेशन हुआ। एल्डोल कंडेंसेशन, कंडेंसेशन का एग्जांपल है। इसमें और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिनमें सेम और डिफरेंट टाइप्स के भी एल्डिहाइड और कीटोन्स आपस में कंडेंसेशन करते हैं, बट यहाँ पर हम सिर्फ ये इक्वेशन डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज यहाँ हमको कंडेंसेशन रिएक्शंस को विद एग्जांपल शो करना है। डिटेल में कंडेंसेशन रिएक्शंस को क्लास 12th में डिस्कस किया जाएगा, जहां पर आइडेंटिकल टाइप्स के एल्डिहाइड और डिफरेंट टाइप्स के एल्डिहाइड और एल्डिहाइड एंड कीटोन्स कंडेंस होकर के डिफरेंट प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन करते हैं। सो कंडेंसेशन इज क्लियर। नेक्स्ट इज पॉलीमराइजेशन। Polymerization. What is polymerization? Polymerization में two or more than two or infinite number, two or more than two or infinite number of रिएक्टेंट के इनफाइनाइट नंबर कंबाइंड होकर के वन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे, सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। एंड पॉलीमराइजेशन एंड कंडेंसेशन में डिफरेंस क्या है? विदाउट एलिमिनेशन, elimination of byproduct मीन्स पॉलीमराइजेशन में किसी भी बाई प्रोडक्ट का इलिमिनेशन नहीं होगा। कंडेंसेशन में इसके पहले बाई प्रोडक्ट्स का इलिमिनेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट पॉलीमराइजेशन में
बाई प्रोडक्ट का एलिमिनेशन नहीं होगा। जो मेन प्रोडक्ट बनेगा वो सिंपल मल्टीपल होगा मोनोमर यूनिट का, जो उसकी एक यूनिट होगी रिएक्टेंट की, जो 1 यूनिट होगी दैट विल बी कॉल्ड एज मोनोमर, और जो प्रोडक्ट होगा दैट इज कॉल्ड पॉलीमर, बिकॉज रिएक्टेंट की बहुत सारी इनफाइनाइट यूनिट मिलकर के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करती हैं। यहाँ पर एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं, रियल एग्जांपल, देन आफ्टर पॉलीमराइजेशन को फिर से डिस्कस करते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH2 n मॉलिक्यूल्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, n मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा। नाउ यहाँ पर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर पर इसको पॉलीमराइज किया तो ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होगी। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया है, किसने ले लिया, अब ये CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, नेक्स्ट ये बॉन्ड इधर से और नेक्स्ट चेन इधर से, और ये होल N, दिस इज अ मोनोमर, दिस इज अ पॉलीमर, दिस इज एथिलीन, मोनोमर, monomer unit, this is polyethylene, this is polyethylene and this is a polymer। इसमें कोई भी बाई प्रोडक्ट एलिमिनेट नहीं होगा। पॉलीमर का मॉलिक्यूलर वेट मोनोमर यूनिट के जितने भी मॉलिक्यूल्स अटैच है उसके कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा, मींस सिंपल मल्टीपल होगा मोनोमर यूनिट के मॉलिक्यूलर वेट का। Why? Because कोई भी बाई प्रोडक्ट यहां से एलिमिनेट नहीं होगा। नेक्स्ट इज लाइक दिस CH2 डबल बॉन्ड CH विनाइल ग्रुप, और यहां से क्लोरीन लगा दिया तो CH2 डबल बॉन्ड CHCl, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डबल बॉन्ड CHCl विनाइल क्लोराइड। N molecules of vinyl chloride under polymerization, again homolysis, free radicals, now CH2 single bond CH single bond Cl, one bond formation इस साइड में, one bond इस साइड में, और इसमें इसकी मोनोमर यूनिट्स ऐड होती जाएंगी और एक पॉलीमर का फॉर्मेशन करेंगी। दिस इज सिंपली विनाइल क्लोराइड, vinyl chloride, and this is poly, so it's called poly vinyl chloride, commonly called PVC, poly vinyl chloride। so यहाँ पर ये पॉलीमराइजेशन की कैटेगरी का एग्जांपल हो गया। सो स्टूडेंट्स, हम टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की सभी कैटेगरीज, एडिशन रिएक्शंस की सभी कैटेगरीज, पॉलीमराइजेशन, कंडेंसेशन, रीअरेंजमेंट, सभी रिएक्शंस को डिस्कस कर चुके हैं। सो बेसिक कॉन्सेप्ट्स में अप्रॉक्स सभी टॉपिक्स को कवर किया जा चुका है। अब इसमें परसेंटेज एस्टिमेशन ऑफ एलिमेंट्स के न्यूमेरिकल एनालिसिस को नेक्स्ट सेगमेंट में डिस्कस करेंगे। ओके, टिल देन थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू एवरीबॉडी।